I am Dr. Savita Rani. I got a Maharashtra Puraskar Award today because of my possessing a very unique skills at Jala Yoga. I'm really honored because these kind of awards are very much required because it's a kind of a motivation and inspiration for us to do much more contribution to India, which is a yoga capital today, yoga capital of the world. Thank you so much. I'm President and CEO of Stellar Global Solutions, and I'm really happy and proud, feel very proud to receive this award today. I'm very thankful to my entire team. It's because of their hard work, dedication, and efforts I could achieve this award. And thanks team for inspiring me and believing in me. And thank you entire team for all the dedication. My name is Lalita Jadhav. I have received this Maharashtra Ratna Puraskar Award for Aranyam. Aranyam is a brand which is for natural perfume. It is a journey from Vikruti's se Prakruti. Vikruti is synthetic chemicals. Aranyam is based on Gandha Shastra, which is a branch of Ayurveda. In this, the process of making perfume, that is Gandha Yukti, is mentioned, and so we are using this technique to make our natural perfumes. Skin is our second mouth, so whatever we apply on our skin, it enters inside. So when we use synthetic chemical perfumes, it is absorbed by the body and we get the side effect, that is skin irritation, lung infection and respiratory tract infection. When we use natural perfumes, there are no side effects. As mentioned, Charak Rishi has also mentioned in this slok the benefits of Sugandha, that is Yusham Saugandham Ayusham, Kamyam Pushti Vardhanam, Saumanasyam Alakshmignam, Gandha Malya Nishamanam. So in Ayurveda, use of perfume is a daily routine. The benefits are when you apply perfume, your life becomes anandi. You get longevity of life. It makes you feel energetic. Saumanasyam is a peace of mind. Alakshmignam, negativity is completely destroyed from your life, and that is the benefit of natural perfume. Thank you. So Aranyam is directly bringing the raw nature to you. Thank you. दोस्तों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेरोजगारी के क्षेत्र में काम कर रही है और बेरोजगारी एक ऐसा मसला है हमारे हिंदुस्तान का जिसका सॉल्यूशन एकमात्र सॉल्यूशन है स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन गाँव-गाँव और कस्बों हवा में खेती करने की तकनीक सिखाएगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मिट्टी नहीं हवा में खेती करने की इस तकनीक को एरोपोनिक एग्रीकल्चर कहते हैं। हम लोग स्कूलों में जाकर के, कॉलेजेस में जाकर के, बल्कि प्रखंड पंचायत में जाकर के लोगों को इकट्ठा करके ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो करने की तकनीक सिखाते हैं। और ये प्रशिक्षण हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे हम लोग नहीं लेते। यही नहीं दोस्तों, हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लोगों से डोनेशन यानी कि चैरिटी कलेक्ट करते हैं और ये डोनेशन और चैरिटी के बदले में हमारे जो बेरोजगार भाई बहन एलईडी बल्ब बनाते हैं वो उनको उपहार स्वरूप दे देते हैं ताकि उनके घर में रोशनी नहीं और बेरोजगारों के घर में प्रकाश हो। जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब पता चला तो महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम लोग बहुत खुश हैं और पूरी की पूरी हमारी एनजीओ जो कि एक राष्ट्रीय स्तर की एनजीओ है, मैं अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए ये पुरस्कार ले रहा हूँ। आज मुझे मिला है और खुशी का दिन है और उम्मीद करते हैं कि और हौसला 4 गुना होगा, 10 गुना होगा।
बेरोजगारी को भगाएंगे, बहुत दूर भगाएंगे। धन्यवाद। ये मेरे बेटे की ओर से मैं नहीं पाई। मेरी बेटी एक्चुअली यूएस में है, डेंटिस्ट है, और वो यहाँ से महाराष्ट्र में एक हॉस्पिटल औरंगाबाद से उसने डेंटिस्ट किया, और वहाँ जाके उसने इतना अपना प्रोफेशन ग्रो किया है कि आज महाराष्ट्र रत्न अवार्ड से वो सम्मानित किया। और वो कुछ कारणवश यहाँ पे इतने जल्दी आ नहीं सकी, उसके राह में हम उसके पेरेंट्स ले रहे हैं, तो उसके ले रहे वो वहाँ पे जाके भी इतना नाम वर्ल्ड का भी उसको ग्लोबल डेंटिस्ट का भी पारितोषिक मिला है, नारी शक्ति का भी अवार्ड मिला है, और उसने जेल में जाके डेंटल ट्रीटमेंट करती है, अनाथालय में जाके भी वहाँ पे डेंटल ट्रीटमेंट करती है, और वहाँ पे जाके वो जो भी अनाथ बच्चे दे रहते हैं उनको भी वृद्धाश्रम में वगैरह जाके भी ट्रीटमेंट करती है। उसके लिए उसको वहाँ के गवर्नमेंट ने भी उसको सम्मानित किया है, और हेड डेंटिस्ट का भी उसको अवार्ड मिला है, और यहाँ पे भी इसको महाराष्ट्र का भी रत्न करके अवार्ड मिला है। ये बहुत उसकी जो कदर की है आपने, नहीं तो क्या होता है कि बाहर के लोग तो कदर करते हैं पर अपने वाले जल्दी नहीं करते, तो यहाँ पे अपने वालों ने कदर की है उसकी, इस बात की हमें भी बहुत ज्यादा खुशी हुई है, और हम ये ऑर्गेनाइज जिसने किया उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और ऐसे ही उसको प्रोत्साहित करते रहे कि हमारी करना है। CA माधव मिलेकर ऍक्च्युली मी रेरा कोऑपरेटिव्ह आणि ग्राहक आयोगाच्या संदर्भात काम करतो, आणि सध्या मोठ्या सिटीत मेट्रो सिटीमध्ये रिडेव्हलपमेंटचे बरेचसे प्रोजेक्ट होत असतात, पण त्याच्यामध्ये फसवणूक जास्त होत असते, त्यासाठी त्यांना योग्य गायडन्स मिळत नसतो। म्हणून मी दर आठवड्यातून एक दिवस त्यांना फ्री गायडन्स देत असतो, टॅक्सेशन संदर्भात किंवा रिडेव्हलपमेंट संदर्भात काय करायला पाहिजे, काय करायला नाही पाहिजे, डीएपी कसं अग्रीमेंट बनवलं पाहिजे, बिल्डरांबरोबर कसं कम्युनिकेट केलं पाहिजे, याच्याबद्दल मी त्यांना फ्री गायडन्स करत असतो, आणि त्याबद्दल मला हे महाराष्ट्र पुरस्कार मिळालेला आहे, आणि हा पुरस्कार मिळाल्यामुळे मला जास्ती काम करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळाले, त्याबद्दल मी ऑर्गनायझर्सचं मनापासून धन्यवाद देतो। थैंक यू सर। मेरा नाम प्रोफेसर सौरभ बजाज है, मैं भगवत गीता कोच हूँ। पिछले 6 सालों से मैं बच्चों को, बड़ों को, सभी को भगवत गीता की लर्निंग्स की हमारी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, कि जब हम आते हैं तब हमें लगता है कि इस दुनिया में कैसे व्यवहार करना चाहिए, भगवत गीता हमें सिखाती है, और ये मैं लोगों को भगवत गीता पहुँचाने का मैं कोशिश करता हूँ, और आज ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे इस काम के लिए महाराष्ट्र रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है, इसका मैं बहुत बहुत उत्कृष्ट उद्योजक म्हणून हा अवॉर्ड देण्यात आलेला आहे। हा दुसऱ्यांदा मी अवॉर्ड घेतोय, माझा मनापासून खूप आनंद होतो की माझ्या कामाची चांगली प्राप्ती आपल्या मार्फत मला मिळालेली आहे। याच्यापुढची जी जबाबदारी वाढत आहे त्याच्यासाठी नक्कीच आम्हाला पुढच्या पिढीला प्रेरणा तर मिळतेच, आणि या अवॉर्ड मार्फत एक मनात एक उत्सुक आपल्याला एक अशी ताकद निर्माण होते, जेणेकरून पुढे अजून काहीतरी आपल्याला वेगळं करण्याची प्रेरणा मिळते। धन्यवाद। मी सर्वांचे मनापासून आभार मानतो, आणि मनापासून हे अवॉर्ड मिळाल्याबद्दल थँक्यू सो मच। नमस्कार, मी डॉक्टर सूर्या महाचंद्र महावनी, डायरेक्टर पारसना स्पेशालिटी क्लिनिक्स। आज 15 वर्ष झालं पारसना स्पेशालिटी क्लिनिक्स सेवा देतो। या सेवेअंतर्गत आपण ज्या रुग्णांना गुडघ्याचं किंवा मणक्याचं ऑपरेशन सांगितलेले हे ऑपरेशन्स आपण चांगल्या पद्धतीने टाळतो। 2 लाखाहून अधिक रुग्णांचे ऑपरेशन्स आम्ही टाळलेले आहेत। आमचे क्लिनिक्स 13 क्लिनिक्स आहेत मुंबईमध्ये आणि पुण्यामध्ये आम्ही कार्यरत आहोत, आणि प्लस या अवॉर्ड बरोबरच आमची आणखी जबाबदारी लागलेली आहे की आम्ही अधिकाधिक रुग्णांना बरं करून आमच्या यासाठी कॉपीराइट ऍक्टेड यासाठी ट्रीटमेंटने त्याचा अमेरिकन पेटंट आम्हाला मिळालेलं आहे। थँक्यू सो मच। मेरा नाम रोहिणी सालुंके है, मैं डायरेक्टर हूँ इकोमैटिक वेंचर्स और वाटरक्रॉप इंडिया। आई एम द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया एंटरप्रेन्योर for developing biodegradable detergent laundry pods and floor cleaners, and हमारा अल्कलाइन वाटर आयोनाइजर है जो completely डेवलप हमने इंडिया में किया है with the vision for pure earth and pure
pure future, or that we can invite help to each and every house with our uncle and mother items. मुझे जब ये टाइटल्स दिए गए भारतीय नारी अवार्ड और विनर ऑफ प्राइड अवार्ड, तो उसके बाद ये कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हम लोगों ने ये जो विजन स्टार्ट किया है वो आगे जाके जितने भी हमारे कस्टमर जुड़ते गए हैं इस चीज़ के लिए और हमारे ये प्रोडक्ट्स को सराहना किया है इन लोगों ने, तो अभी ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये इट इज गोइंग टू बी अ गुड ब्रांड ऑफ इंडिया। और अभी ये महाराष्ट्र रत्न अवार्ड मिलने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस फैसिलिटेशन एज अ प्राइड फॉर मी टू बी रिकग्नाइज्ड एज एन आइकॉन फॉर अ स्टेट। सो ये दोनों ब्रांड्स के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। पुरस्कार के लिए आई बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, सुमित नंदू जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। पहले ही मैं जिन्होंने मेरे बारे में इतने अच्छे शब्द कहे, आप सबके आशीष मिल रहे हैं और क्या चाहिए। इतनी अच्छी पर्सनैलिटीज आज मिली, काफी लोगों से मैंने उनके बारे में जाना, इतना अच्छा काम मेरे स्टेट में हो रहा है इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बहुत प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि इतने सारे पावर लोग हमारे आसपास हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं और साथ ही काफी सारे अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी अपने साथ सत्य से ऊपर उठना चाहते हैं। रियली प्राउड, थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बहुत अच्छी फिल्में और वेब सीरीज आ रही है, रिलीज हुई जो तेरा है वो मेरा है ऑन जियो सिनेमा, लव सितारा आ रही है C5 पे और मानवत आ रही है सोनी लिव पे, जरूर देखिए और ऐसे ही आपका प्यार मुझे देते रहिए। शुक्रिया। मैं भारत पुरस्कार सर और मुझे इस अवार्ड से सम्मानित करने के लिए धन्यवाद। I am Paresh Yadav, awarded the Empowering Women Award. Thank you for that. Thank you for recognition. मैं एक coach हूँ और एक author भी हूँ, so thank you for acknowledging my work. Thank you. मेरा स्तर थोड़ा अमरावती, मैं एक गरीब और स्लम एरिया में एक कॉलेज शुरू करके और तब से 152 बच्चों को कॉलेज में एडमिशन देने के लिए ये अवार्ड मिला है और आने वाले दिनों में एक सिस्टम चालू करने के लिए मुझे अवार्ड दिया गया है। मैं आफ्टरनून जो वॉइस है उनको सारी टीम को बधाई देता हूँ और बहुत ही अच्छा फंक्शन रहा ये परंपरा कायम हुई है। जो भी समाज में अच्छा काम करते हैं उनका वो सम्मान करते हैं। हर साल ये परंपरा कायम हुई मैं खुद एक संपादक हूँ, एडिटर हूँ, न्यूज़पेपर चलाती हूँ और एक चैनल भी चलाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल खबरें निकाल के लाना ही मेरा उत्तरदायित्व नहीं है। मेरा ये भी कर्तव्य है कि समाज में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी सराहना की जाए और उन लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाए जिनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। क्योंकि बहुत से लोग, आप भी लोग बहुत मेहनत करते हो, लेकिन जिस दिन
कोई आपको एक शाबाशी दे देता है तो आपको बहुत खुशी मिलती होगी। तो हमारा एक डेमोक्रेसी अवार्ड भी होता है जो केवल मीडिया वालों के लिए होता है। मैं चाहूंगी कि आप सब अवार्ड ले लें। तो अवार्ड जो होता है ये कहने का एक जरिया होता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आगे करते रहिएगा, और लोगों को बढ़ावा देना, उनके काम की सराहना करना, ये हमारा कर्तव्य है कहीं ना कहीं। और यही कर्तव्य निभाने के लिए महाराष्ट्र के लिए जिन्होंने योगदान दिया उनके लिए ये पुरस्कार होता है। पुरानी जर्नलिज्म गिरवी नहीं थी, बेबाक थी। आज की जर्नलिज्म में प्रेशर बहुत है, बोलने की और लिखने की इतनी आज़ादी मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं है, क्योंकि अगर अखबार और चैनल माफियाओं के हाथ में दी जाए या किसी बिजनेसमैन के हाथ में दी जाए तो सत्ता के फेवर में ही उनको बात करना पड़ेगा, क्योंकि उनका व्यापार चलाना है। मैं बहुत अच्छा जवाब। आप कितना चैलेंजिंग समझती है आज को एक संपादक है, कितना चैलेंजिंग समझती, क्या लगता है आपको जर्नलिस्ट साबित करने के लिए कितना चैलेंजिंग? मुझे नहीं लगता चैलेंजिंग है, क्योंकि पिछले 18 साल से मैं खुद अपने पेपर को फंड कर रही हूँ, अपनी आवाज उठा रही हूँ, और बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो मैंने तैयार किए हैं मेरे अखबार में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरी यंत्रणा तो मैं बदल नहीं पाऊंगी, लेकिन कुछ अच्छे जर्नलिस्ट अगर इस मेन स्ट्रीम मीडिया को मैं प्रोवाइड कर पाऊँ तो मैं बहुत सारा योगदान दे पाती हूँ। और इसलिए मैं ये जर्नी को अंदर ऐसे ही रखूंगी, और किसी दबाव में मैं नहीं चाहती कि कोई भी आवाज़ है, चाहे आपकी हो चाहे मेरी। थैंक यू। मैं डॉक्टर रचना चाची, कैंसर एंड मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट। पिछले 15 साल में हम लोग कैंसर और मेंटल हेल्थ की काम कर रहे हैं। ये 2 साइलेंट एपिडेमिक हैं भारत के, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, लेकिन इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन कैंप्स कर रहे हैं कैंसर के लिए, जिसकी वजह से आउटकम जो है, सर्वाइवल रेट जो है वो बेटर हो जाएगा। और मेंटल हेल्थ जो है वो मिलेनियल और जेन जेड में बहुत फैला हुआ है, और ये हमारी 52% ऑफ द पॉपुलेशन है। इस भारत की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से परेशान है, और जितने जो साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स हैं वो कम है इस पॉपुलेशन में। तो हमारी संस्था काइंडनेस प्रैक्टिस फाउंडेशन इन दोनों एरियाज में काम कर रही है, कैंसर में और मेंटल हेल्थ में। इस काम के लिए Award for Aviation Academy. I got this award for best placements among all the aviation industry aviation academies, and I'm very proud and glad that I've received this award. And thank you so much. माझं नाव सिद्धार्थ दशरथ जावळे, मी जाता सोल्युशन्सचा फाउंडर आणि डायरेक्टर मेंबर आहे, आणि आज मला हा अवॉर्ड मिळाला आहे आफ्टर मेंबर्सकडून, आणि महाराष्ट्र रत्न लेटर मी जशी गव्हर्नमेंट केलेली आहे त्यांचा मी धन्यवाद करतो. आणि हा अवॉर्ड घेताना माझे वडील आहेत माझ्यासोबत, त्याच्यापेक्षा मोठा आनंद माझ्यासाठी काहीच नाही. थँक्यू. I'm a teacher, I'm a mentor, and I've been into mentoring the students for the last 24 years now. There are a lot of students who have qualified to grad, IIT, JEE, UPSC exams, IAS officers, IPS officers, and this goes to all my students who have really worked hard and made me proud of this, and this is all because of them, and this is to them all. Thank you so much. मेरा नाम शांभवी है, मैं मुंबई में पिछले 15 साल से ऊपर हूँ, 26 साल से मैं मेरा काम कर रही हूँ, और इस फील्ड में मैंने कुछ ऐसे लोगों को राह दिखाया जिन्होंने जिंदगी जीने की खाक छोड़ दी थी। सो आई थिंक उनकी ब्लेसिंग्स है कहीं ना कहीं कि आज ये हाथ में मिले हैं। एंड लिटरली मैं बॉम्बे आई थी एक अनजान शक्ति बन के, इस शहर ने मुझे मेरा पहचान दिया। सो जय महाराष्ट्र। मेरा नाम डॉक्टर रमेश कुमार बोपड़े, फ्रॉम चंद्रपुर, योगा फाउंडेशन इन महाराष्ट्र। एज मैं सीखे और कमाइए रोजगार के संबंधित ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाता हूँ, और बैंकिंग सेक्टर से ज्यादा रोजगार लोगों को दिलाता हूँ। और वो मेरा एक मोटिव है कि वो बेरोजगारी कैसी मिटेगी,
और उसी के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार मेला लेते हर महीना मेरा बेरोजगार मेला रहता है। कहीं ना कहीं 500 से 600 युवक युवतियां वहाँ में शामिल होती है। उसमें से बहुत सारे लोगों को मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सेक्टर की इसमें मैं काम करता हूँ, क्योंकि मेरा बैंकिंग सेक्टर है एज एच लाइफ एंड ये माध्यम से मैं इस रोजगार को दिलाने की कोशिश करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि लोगों को रोजगार मिलता है, तब आनंद मिलता है मुझे। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ कि हमारे ये लेके और विशेष महेश गुरुवारी जी का धन्यवाद देता हूँ कि ताकि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार देकर हमें सम्मानित किया। इसलिए शिकानी शिकानी वय फाउंडेशन द्वारा आम्ही शिकवतो आणि बँकिंग सेक्टरला त्यांना पुष्कळ अशा बेरोजगार लोकांना आम्ही जॉब देतो आणि महाराष्ट्रामध्ये करीबन आज तर 1,500 ते 2,000 लोकांपर्यंत जॉब केली आहे आणि मला खूप आनंद होतो की महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार आम्हाला I'm the Director and Trustee of Jnana Yoga Education Trust. I have received this award as a visionary leader in education, and I am looking forward to play my role more efficiently. We have a school, junior college, degree college, we have a pharmacy and nursing college also, and me and my father we have aimed to give quality education to the society, and we are striving for that. I really thank Afternoon Voice for giving me this award and giving me this opportunity to portray my hard work to the society, and thank you. क्वेश्चन आंसर देती कम समय में, और अभी फिलहाल बहुत सारे क्वेश्चन आंसर उसके इतने वायरल हो गए कि मोदी जी के बीच में बर्थडे भी था, उसका विशेष वगैरह इतने वायरल हो गए। तो अभी के लिए फिलहाल उसे मिला है फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड यंगेस्ट इन्फ्लुएंसर महाराष्ट्र डॉटर। पिछले ये पूरे जर्नी में 3 साल में उसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, फिर मिनिस्टर्स लोगों ने दिया, देन प्राइड ऑफ नेशन, प्राइड ऑफ भारत, फिर जीके पोर्टुगी, जीके मास्टर, आईक्यू मास्टर ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे टाइटल उसने होल्ड किया है फॉर द क्वेश्चन आंसर ज़्यादा। और मुझे एक तो अभी तो मैं क्वेश्चन आंसर कुछ पूछूंगी उससे, बट मुझे थैंक यू बोलना है PR टीम को, रेड हैंड, जिन्होंने नॉमिनेट किया, उसका टैलेंट को जाना, एंड ऑल्सो आफ्टरनून को कि उसे इतना नॉमिनेट किया। अच्छा लगा महाराष्ट्र और मुझे इसके योग्य समझा और मैं ये स्लाइड समझा कि मुझे ये अवार्ड मिलने चाहिए। तो आज मैं आप सबके सामने यहाँ पे हूँ और मेरी कंपनी का नाम नेगी स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड है, दीपक नेगी मेरा नाम। और दोबारा से धन्यवाद करूँगा आप सबका भी और मीडियम प्रोफेशनल्स का। जय महाराष्ट्र का अचीवमेंट क्या है, किस अचीवमेंट के लिए आपको अवार्ड दिया? ब्रांड